امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کبھی کسی امت نے اپنے نبی کی بیٹیوں اور نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین مناجات میں سیدہ سکینہ کو مانگا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال کے آگے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے تھے، اے پروردگار، مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت پیار کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے، وہ میرے سینے پر سوئے اور اس کی قرابت سے مجھے سکون ملے۔ افسوس کہ کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ ہمارے لاکھوں سلام اس معصومہ پر جو عاشورہ کا دن ڈھلنے تک بچوں کو یہ کہہ کر دلاسا دیتی رہی کہ ابھی چچا عباس پانی لائیں گے۔ معصوم کو بھلا کیا خبر تھی کہ اس کے چچا تو نہر فرات کے کنارے اپنے دونوں بازو کٹوائیں گے۔ غازی عباس کی شہادت کے ساتھ ہی سیدہ سکینہ کی پانی کی آس بھی ٹوٹ گئی۔ تاریخ نے لکھ دیا کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد خیموں سے العطش العطش کی صدائیں رک گئیں۔ 10 محرم کا دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں تو لاڈلی بیٹی سکینہ ان کے سینے سے لگ کر زارو قطار رونے لگتی ہے۔ امام حسین بیٹی سے مخاطب ہوتے ہیں، اے سکینہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ اشک حسرت سے مجھے زیادہ نہ تڑپا، میرے جیتے جی نہ رو، اور جب شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ اس طرح امام حسین 4 سالہ شہزادی کو دلاسا دیتے ہوئے بہن زینب کے سپرد کرتے ہیں اور میدان جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پر اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی۔ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر اور عمر ابن سعد نے سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ حملہ کرے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا۔ لوگ امام حسین کو تیر مارتے ہیں، نیزے مارتے ہیں۔ امام حسین زخموں سے چور چور ہیں کہ آواز قدرت آئی، پلٹ آ اے نفس مطمئن، پلٹ آ حسین، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا پر امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو میان میں رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرمل لعین نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا جس سے آپ سنبھل نہ پائے۔ پیر رکابوں سے اکھڑ گئے اور آپ زین سے زمین پر آ گئے۔ سرخ آندھی چلنے لگی، میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ بیبیاں اور بچے دوڑتے ہوئے خیموں سے باہر آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے بابا کو پکارتی ہوئی باہر آئی اور اپنے بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ لوگوں سے پوچھتی ہیں، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک یزیدی پوچھتا ہے، کون ہے تمہارے بابا؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کا نام پکارا تو اس ظالم نے تیر نکالا اور امام حسین کے زخمی لاشے کو مار کر کہنے لگا، دیکھو یہ ہے تمہارا بابا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا تک پہنچی۔ پھر قدرت نے یہ دردناک منظر بھی دیکھا کہ 4 سالہ معصوم سکینہ کے سامنے اس کے بابا حسین کا گلا کند خنجر سے کاٹا گیا۔ سیدہ سکینہ کے سامنے شمر ملعون امام حسین کو ذبح کر رہا تھا۔ سیدہ سکینہ روتے ہوئے پکار رہی تھیں، اے شمر، میرا بابا مظلوم ہے، میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟
मेरे बाबा के सीने से उतर जा, मेरे बाबा पे जुल्म ना कर। ये सुनकर शिम्र मलऊन और ज़रबे लगाने लगा। वो सैयदा सकीना को खंजर दिखा दिखा कर इमाम हुसैन की गर्दन पर मारता रहा और इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग कर लिया। फिर तमाम अहले हरम को रस्सियों से बांध कर काफिला कूफा और शाम की तरफ रवाना होता है। आगे आगे नेज़ों पर शुहदा के सर हैं और पीछे बीबियाँ। सैयदा सकीना जब अपने बाबा का सर नेज़े की नोक पर देखती हैं तो रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती हैं तो शिम्र तमाचे मारता है। सैयदा सकीना के रुखसार इतने ज़ख्मी हो जाते हैं कि खून रिसने लगता है। कूफा और शाम के सफ़रों के दरमियान एक वक्त ऐसा आता है कि इमाम हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता, अपनी जगह पर नस्ब हो जाता है। शिम्र गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। सैयदुस साजिदीन सैयदा ज़ैनब से फरमाते हैं, फूफी अम्मा, बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा। सैयदा ज़ैनब एक नज़र काफ़िले पर डालती हैं और रो कर फरमाती हैं, सकीना ऊँट से नीचे गिर गई है। जब सैयदा सकीना को उठाकर लाया जाता है तो शिम्र बीबी को तमाचे मार कर कहता है कि तुम्हारी वजह से काफ़िला रुका हुआ था। मासूम सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगती है। उस पर यह शैतान नुमा इंसान मासूमा को बिना जीन के ऊँट की पुश्त पर रस्सी से बांध देता है और कहता है, मुझे जल्द अज जल्द यजीद के दरबार में पहुंचना है और इनाम लेना है। मैंने हुसैन के सर को कलम किया था, मुझे सबसे ज़्यादा इनाम मिलेगा। असीरों का काफ़िला जब शाम पहुंचा तो यजीद अपने दरबारियों से पूछता है, ये कौन हैं? दरबारी कहते हैं, ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछता है, ये छोटी बच्ची कौन है? जवाब मिलता है, ये हुसैन की सबसे छोटी बेटी सकीना है, शराब के नशे में चूर। यजीद सैयदा सकीना को देखकर हंसने लगता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्या इनसे मिलना चाहोगी? इतना कहकर यजीद लानती उस तश्त पर से कपड़ा हटा देता है जिसमें इमाम हुसैन का सर रखा था। बाबा का सर देखकर सैयदा आगे बढ़ने लगती हैं तो यजीद उन्हें रोक कर कहता है, ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूँगा। तुम अपने बाबा को दूर से ही पुकारो, मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे पास कैसे आते हैं। सैयदा सकीना ने रोते हुए पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आइए। बीबी का इतना कहना था कि सरे हुसैन ने परवाज़ की और बीबी की गोद में आ गया। सैयदा सकीना बाबा के रुखसार पर अपना ज़ख्मी रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को ज़िंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को ज़िंदान में कैद कर दिया गया। शाम को जब परिंदे आते जाते तो सैयदा सकीना भाई ज़ैनुल आबिदीन से पूछती, भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? इमाम फरमाते, सकीना वो अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। इस पर बीबी फरमाती, भैया हम कब अपने घर जाएंगे? हमें कैद से कब रिहाई मिलेगी? ये कहकर ज़ारो कतार रोने लगी। कभी बाबा को पुकारती, कभी चचा अब्बास को याद करके रोती, कभी अली अकबर को पुकारती तो कभी अली असगर को याद करके रोती। एक दिन सैयदा सकीना ने बाबा को याद करके इतना गिरिया किया कि बेहोश हो गई। ख्वाब में देखती हैं कि बाबा हुसैन लेने आए हैं। बाबा के सीने पर सर रख कर सकीना रोने लगती हैं और फरमाती हैं, बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपके जाते ही शिम्र ने मेरे कानों से गोशवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे कि मेरे रुखसार नीले पड़ गए। जब मैं आपको याद करके रोती हूँ तो शिम्र ताजियाने मारता है। बाबा अब आप हमें छोड़कर न जाना। बेटी की फरियाद सुनकर इमाम हुसैन ने अपने दोनों बाजू फैलाए और फरमाया, आ मेरी सकीना, मेरे पास आ जा। सैयदा सकीना की आंख खुली तो अहले हरम से अपने ख्वाब का जिक्र किया। कैद खाने में एक कोहराम बर्पा हो गया। अहले हरम एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बीबियों के रोने की आवाज़ बुलंद हो गई। यजीद सो रहा था। जब रोने की बुलंद आवाज़ सुनी तो नींद से जाग गया और कहने लगा, ये कैसा शोर है, ये क्या हो रहा है? यजीद के दरबारियों ने बताया कि हुसैन की 4 साला बच्ची अपने बाबा को याद करके हर वक्त रोती रहती है। किसी ने मशवरा दिया कि उसे हुसैन का सर दे दिया जाए तो खामोश हो जाएगी। यजीद आमादा हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिंदान में लाया गया। अहले हरम ने खड़े होकर इस मुबारक सर का इस्तकबाल किया।
इतना गिरिया हुआ कि कैद खाने के दरो दीवार लरस गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तोक और बेड़ियाँ संभालते हुए उठे और बाबा का सर सैयदा सकीना के सामने रख दिया। जब बीबी ने अपने बाबा का सर पहलू में पाया तो उसे अपनी गोद में लेकर ज़ारो कतार रोना शुरू किया। फरमाने लगी कि बाबा, आपके चले जाने के बाद आपकी सकीना पर बहुत जुल्म किया गया। रस्सियों में बांध कर शहर शहर फिराया गया। लोगों ने हम पर गर्म रेत फेंकी और पत्थर मारे। आपकी यतीम बेटी को पानी से तरसाया गया, मुंह पर तमाचे मारे गए और जो गोशवारे आपने ईद पर लाकर दिए थे वो छीन कर मेरे कान जख्मी कर दिए। बाबा, शिमर ताजियाने मारता है। आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती बाबा। आप मुझे अपने पास बुला लें। आपकी सकीना अब आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं जी सकती आपके बगैर। ये 4 साल की मासूम बच्ची इतना रोई कि इसी हालत में इस दुनिया से चली गई। इमाम सज्जाद मासूम बहन का जनाजा अपने हाथों पर उठाते हैं। बाजुओं पर रस्सियों के नील पड़े हैं, बालों में खून और मिट्टी जमी है। बहन के जख्मी रुखसारों का बोसा लेते हुए फरमाते हैं, बाबा हुसैन, आपकी सकीना आपके हवाले। तमाम बीबियों में आहो फुगा बरपा है। इमाम सज्जाद रोते जाते हैं और बहन के लिए कब्र तैयार करते हैं। ज़माने की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जन्नत के सरदार की मासूम बेटी को मुसाफिरों के कब्रिस्तान में उसी बोसीदा जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया जाता है। मेरा सलाम हो पाक मासूमा सैयदा सकीना पर।